Morning students, I am Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. Today I will explain about the historical research design. Okay, so what is that? Historical research is a systematic collection and objective evaluation of data related to past occurrence in order to test hypotheses concerning causes, effect, and trends of these events that help to explain present events and anticipate future events also. Okay. Historical research, that means history. History, that means past. Okay, so the research is based on the past experience of the patient, or the whatever situation or whatever events happened in the past events. Okay, so based on past event, based on whatever happened in the past, the future is also predicted, and that is also used in the present also. Okay, मीन्स पेशेंट या तो फिर जो भी अपना सैंपल है उसका जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो भी इवेंट्स उसके साथ हुए हैं, उसके बेस पे भी हम लोग उसको फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर भी उससे प्रिडिक्ट करते हैं, या तो फिर हाइपोथेसिस करते हैं उससे, या तो फिर उसका प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं बेस्ड ऑन हीज और हर पास्ट एक्सपीरियंस. ओके, these include higher criticism and textual criticism. मीन्स जो भी रहता है पास्ट एक्सपीरियंस, वो क्या है, बेस्ड मतलब कि रियल नहीं है, एथिकल नहीं है. ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसके लिए क्रिटिसिज्म होता है और ऑब्जेक्शन भी होते हैं रिसर्चर के ऊपर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी दिस ऑल पॉइंट्स वी विल सी लेटर. Then purpose of historical research, what are the purpose of this historical research design? Okay, why we will take that historical research design? Okay, first is to make people aware of what has happened in the past so they may learn from past failure and success. ठीक है, पेशेंट या तो फिर जो सैंपल हैं उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ होगा उसके बेस पे ही अपन क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है, सो दे मैं लर्न फ्रॉम पास्ट, जिससे कि हम लोग को पता चल सके कि पास्ट में क्या हुआ है, उसका सक्सेस क्या है, उसका फेलियर क्या है, कहाँ पे पेशेंट सक्सेस हुआ था, कहाँ पे किस सिचुएशन वो फेल हो जा रहा है. ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं. ठीक है, उसकी क्या मतलब कि स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंस और थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. ओके, देन सेकेंड इज व्हाट, to learn how things were done in the past, in the past, so see if they might be applicable to the present day problems and concern. Okay, means whatever happens in the past situation or in the past time, we will see that situation. After that we can, if the situation is applicable in the present or in the future, then we will take that situation from the past and use in the present and use in the future also. Okay, then next is टू असिस्ट इन प्रिडिक्शन. मीन्स प्रिडिक्ट ही तो कर रहे हैं ना, पास्ट के बेस पे हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे. देन टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट एजुकेशनल प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज मोर फुल्ली, बिकॉज ऑफ दैट past experience we can understand more or in detail. Then to test hypothesis concern relationship or trends. मीन्स हम लोग हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं. आइदर इट इज़ मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट और नॉट मेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन दैट, वी कैन प्रिडिक्ट दैट, वी कैन हाइपोथेसाइज दैट. ओके, means cause and effect relationship, that means here the cause is affecting relationship that effect or not, means independent variable is affecting the dependent variable or not, that we can predict or that we can hypothesize. Okay, so these all five are purpose of historical research design. Okay, then next we will see about the process of conducting historical research design. In that uh, the process of conducting historical research is the same as for other research. Okay, so first is जैसे कि हम लोग पहले ही देखे हैं, same thing, definition of a problem. Firstly we will understand the what is our statement, what is our problem. Okay,
फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड और हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। उसके बाद हम लोग को क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाना है, क्या प्रिडिक्ट करना है, हाइपोथेसाइज करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। देन सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम दी सैम्पल, मीन्स इंटरव्यू के थ्रू या तो फिर क्वेश्चनर के थ्रू, उससे सारा चीज़ क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाटा अपन कलेक्ट करेंगे सैम्पल से। ओके, देन इवाल्युएशन ऑफ डाटा, दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ डाटा थ्रू coding. Okay, then production of verbal synthesis of findings on confirmation of hypothesis, means cause and effect relationship है या नहीं है वो हम लोग क्या करेंगे, confirm करेंगे. So this is the process that we have also seen in the previous process also. Okay, the next steps involved in historical research. Okay, by example it is given. First is what, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और क्वेश्चंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, रिसर्चर एम टू डिस्क्राइब, क्लैरिफाई, एक्सप्लेन और करेक्ट व्हाट हैज़ बीन कंडक्टेड बिफोर। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो चुका है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल एंड करेक्ट करेंगे। ओके, देन सेकेंड इज लोकेटिंग रिलेवेंट सोर्सेज ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग को क्या करना है, इन्फॉर्मेशन दैट मीन डाटा। ठीक है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स प्रीवियस डाटा। ओके, तो प्रीवियस डाटा हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, लोकेट करना है या तो फिर कलेक्ट करना है। ठीक, रिसर्चर सर्चिंग फॉर रिलेवेंट सोर्सेज मटेरियल्स। अब डाटा हम लोग को कहाँ से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, वो सारे सोर्सेज को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना। ओके, द नेक्स्ट इज समराइजिंग एंड इवालुएटिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज। अब जहाँ से भी हमारा सोर्स था, जैसे कि पेशेंट खुद बताए, उसके इन्फॉर्मेंट बताए, उसके रिलेटिव्स बताए, ठीक है, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट था, जो भी वहाँ पे विटनेस था, वो सारी चीज़ बताए, तो ये सब चीज़ हमारे क्या है, सोर्स हैं। ठीक है, तो सबसे अब उसके बाद थर्ड पोजिशन में अपन क्या करेंगे, समराइजिंग एंड इवालुएटिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा सोर्सेज है वहाँ से हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद लास्ट में हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉन्साइज वे में एक समराइजेशन तैयार करेंगे। ठीक है, डाटा का। रिसर्चर विल समराइज द इवालुएट एंड इवॉल्वेट द सोर्सेज दैट दे एबल टू लोकेट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद लास्टली क्या करना है, समराइज करने के बाद प्रेजेंट करना है जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल हुआ है। ठीक है, रिसर्चर इंटरप्रेट द एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड देन ड्राइंग एंड कंक्लूजन अबाउट द प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे एट लास्ट रिसर्चर क्या करेगा, जितना भी उसके पास रहेगा इंफॉर्मेशन डाटा, उन सब के लिए क्या करेगा, एक प्रिसाइज वे में कंक्लूजन तैयार करेगा। ओके, और उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्ट करेगा। ठीक, सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, एडवांटेजेस। In that first is the researcher is not physically involved in this situation under study. ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जो भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे है, तो वहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, जस्ट दूसरों से क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, लेकिन वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहेगा। देन नो डेंजर ऑफ एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इंट्रैक्शन, यहाँ पे कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं रहता। डॉक्यूमेंट्स आर लोकेटेड बाय द रिसर्चर, डाटा इज गैदर्ड एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन आउट ऑफ साइट। ठीक है, जो भी रहेगा हमारा सोर्स रहेगा, ठीक है, जो भी हमारे मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है, जो भी वहाँ पे पर्सन या विटनेस रहेंगे, उनसे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी डाटा है उसको क्या करेंगे, पहले लोकेट करेंगे, फिर गैदर करेंगे, मतलब ऑब्टेन करेंगे, देन नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन रेडी करेंगे, जैसे कि हम लोग स्टेप्स में देखे सेम वैसा ही। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन। In conducting historical research, the researcher can neither manipulate nor control any of variables. ठीक है, ये हमारा कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो नहीं है ना। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, कोई ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग डाटा क्या करेंगे, पास्ट हिस्ट्री से कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा। क्लियर? देन देर इज़ नो वे हिस्टोरिकल रिसर्चर कैन इफेक्ट इवेंट्स ऑफ पास्ट। ठीक है, मीन्स जस्ट हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ना, वहाँ पे हम लोग कोई इफेक्ट तो नहीं डाल सकते पास्ट एक्सपीरियंस में, दैट इज़ ऑलरेडी हैपन्ड। देन हिस्टोरिकल रिसर्च कैन नॉट कलेक्ट डाटा बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट।
कोई भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम लोग डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हिस्टोरिकल. देन हिस्टोरिकल रिसर्च इज लिमिटेड टू वॉट एवर डाटा आर अवेलेबल. मीन्स हम लोग वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते, हमारे पास जो भी सोर्सेस हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, थ्रू दैट ओनली वी कैन take data, because it is, and it is not ethical, and it is having the more criticism, no. The next is historical research excessively release on secondary source of data. Means primary source of data तो वहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट ही नहीं है. जस्ट जो भी सेकेंडरी पर्सन से हम लोग डाटा उसी से ही कलेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के. फर्स्ट इज essay written by elementary school children during the civil war. ठीक है, that is already happened. उस essay को हम लोग क्या करेंगे, एज अ सोर्स डाटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे. देन अटेंडी रिकॉर्ड फ्रॉम 2 different स्कूल डिस्ट्रिक्ट ओवर द 40 years पीरियड. मीन्स पास्ट में, मतलब कि पिछले 40 years में जितना भी अटेंडेंस था वो सारे चीज़ रिकॉर्ड चेक करेंगे बिटवीन द 2 स्कूल डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. देन हाई स्कूल ग्रेजुएशन डिप्लोमास फ्रॉम दी 1920s. 1920s से लेके अभी तक का जितना भी डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, वो सारे चीज़ अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल about the past history or past data or information. Okay, so these are the examples of historical research. When we will go in the history, when we will go in the past experience of the person or past events or situation, at that time we will do the historical research design. Okay, so I will summarize once again. Historical research design, that means historical research is a systematic collection and objective evaluation of data related to the past occurrence. ठीक है. So we have seen about the purpose of historical research. Then next we have seen process of conducting historical research, that is already we have seen in previous. Then steps involved in historical research, then advantages and disadvantages, and some examples of historical research design. Okay, so here my topic is completed, and next class we will see about the case study and action research. Okay, then here my class is completed. Thank you, students.